Friends, let's know how to do cross product. Since you see here, last class I had told you about the cross product of unit vectors. मैंने बताया था. फ्रेंड्स बताया था ना क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में. Am I audible? Yes, sir. A vector cross B vector is equal to AB sin theta ना. Yes or no? Yes, sir. Who is saying like that? Direction is given by. Direction is given by. कौन सा रूल बताया था मैंने? Right hand rule. स्क्रू रूल बताया था एक, और एक बताया था राइट हैंड थंब रूल बताया था ना. Yes, sir. Right hand thumb rule. That means if this is A vector and this is B vector, so the resultant vector is going to be A cross B. So the cross product is going to be A cross B. And so in the direction I am going A to B. So the encircled fingers will represent the direction of the vector, and the screw rule will be the thumb pointing upward. Yes or no? The direction will be, students, A to B, A cross B, and direction will be how much? Upward. A cross B का क्या होगा डायरेक्शन? अपवर्ड होगा. That means away from the plane. Away from plane. Friends, yes or no? और आउटवर्ड भी बोल सकते हैं. इस स्क्रीन पे कहां पर? आउटवर्ड. And the resultant vector is, students, A cross B का जो रिजल्ट आएगा, that will be perpendicular to both the vectors. Yes or no? Yes, sir. A cross B vector जो आएगा, it will be perpendicular to both A and B. It will be perpendicular. It will be perpendicular to both A vector and B vector. ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में. और जब यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स भी लास्ट क्लास मैंने बताया था, और एक बार रिकैप्चुलेट करते रहा हूँ. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स. Friend, this is I cap plus I cap is equal to how much? Magnitude of I, magnitude of same 0 na. So that is 0 na, students. Yes, K sir. cap cross K cap will be 0. 0. J cap cross J cap will be 0. let students मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये x axis है, this is y axis and this is z axis. Okay, so here I cap, here J cap, here K cap, isn't it? So if I'll go for I cross J, that means I J को perpendicular क्या होगा? K cap होगा ना? Because I cap cross J Yes, cap sir. cross sin 90. Sin 90 is 1 na? Yes or no? Yes, sir. 1, and it will be along K, along Z axis. It will be along Z axis. So I cross J is how much? K cap. And J cap cross K cap will be how much? I Yes or no? If I'll take I to J, J to K, K to I, K cap cross I cap will be how much? J. Understood? So if I'll be taking the sequence I cap, J cap, K cap, if I'm going clockwise, so it will be positive. Yes or no? J to K will be positive and K to I will be. Positive. If I'll be going in anti-clockwise direction, K cap, I cap, so it will be negative. Yes or no? If I'm going in this direction, it will be negative. If I'm going in this direction, it will be also negative. Understood? Yes, sir. ये हम लास्ट क्लास पढ़े थे. चलो अभी हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे. लेट मैंने ऐसा ले लिया है क्वांटिटी A वेक्टर इज इक्वल टू A1 I cap प्लस B1 J cap प्लस C1 K cap. ओके,
and let B vector is equal to A to I cap plus B to J cap plus C to K cap. Okay, yes or no? A क्रॉस B कितना होगा? How much will be A क्रॉस B? चलो मल्टीप्लाई करते हैं. Let's start multiplying. हाँ friends, so that will be A1 I cap whole into क्या करेंगे? A2 I cap लिखो मेरे साथ प्लस B2 J cap plus C2 K cap. Okay, yes or no friends? प्लस B1 J cap, फिर उसको सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap. Everyone is writing with me, listening me properly? Yes, sir. Yes, sir. C1 K cap, that is A2 I cap again plus B2 J cap plus C2 K cap. यहाँ तक लिख दिया सबने? आशीष राइटिंग और नॉट? सर और थोड़ा सा आगे. मैंने A1 को पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर B1 J को इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया ना, पूरा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर C1 K को सबके साथ मल्टीप्लाई किया. ऑल राइट, तो यस सर. नेक्स्ट अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सो इट विल बी आई कैप कितना है? 0 है ना, तो ये 0 नहीं रहेगा. A1 इंटू B2 कितना है? A1 B2 आई कैप क्रॉस J कैप कितना होगा रे? I क्रॉस J कितना होगा? ये J है, K K कैप हो cap. जाएगा. करेक्ट. प्लस A1 C2 लिख दिया हम, A1 C2. फ्रेंड आई कैप क्रॉस K कैप कितना होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव कौन सा वेक्टर होगा? माइनस J कैप. माइनस J कैप. यस और नो? आई को मैंने K के साथ मल्टीप्लाई किया, मैं इस तरह से यहाँ तक आ रहा हूँ, I2K, so it will be J and negative J. ओके, प्लस B1 into A2 कर दिया मैंने, B1 into A2. J कैप I कैप कितना होगा स्टूडेंट्स? J कैप I कैप, मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ? J to I मतलब एंटी क्लॉकवाइज, so it will be negative ना, so it will be minus K कैप. सबको समझ Yes, में आ रहा है? sir. All are getting ना students? B1 into A2, J cross I is minus K कैप. Yes or no? प्लस B1 B2 J कैप 0 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स? J कैप प्लस J कैप इज 0. यस और नो? अगेन B1 C2 मैंने मल्टीप्लाई किया, Yes, sir. B1 C2, यहाँ पर J कैप क्रॉस K कैप कितना होगा? I कैप. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. C1 A2 यहाँ पर पहले लास्ट में मल्टीप्लाई किया, C1 into A2, C1 A2. स्टूडेंट K कैप I कैप कितना होगा? K क्रॉस I इज J ना, K क्रॉस I कैप इज J कैप पॉजिटिव, क्योंकि मैं Yes, sir. प्लस C1 B2. हेलो सर. हाँ, सर B1 C2 होना चाहिए. उल्टा लिखने से क्या होना? B1 C2 होना चाहिए. कहाँ पर? सर यहाँ पे. B1 C2. अच्छा यहीं पे तो, अच्छा यहीं पे ना, यस सर. B1 C2. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर C1 A2 प्लस C1 B2. C1 A2 कर दिए, C1 B2 कर दिए. K क्रॉस J कितना होगा? K J मतलब उल्टा, माइनस I क्या, करेक्ट ना? K क्रॉस J कितना होगा रे? K to J उल्टा आ रहा हूँ तो नेगेटिव I क्या होगा ना? ऑल गॉट? यस सर. Yes, sir.
तो स्टूडेंट चलो आई कैप को कॉमन लेते हैं, पी कैप को कॉमन लेते हैं, सी कैप को कॉमन लेते हैं, ठीक है। लेट आई विल बी टेकिंग आई कैप कॉमन। कितना आई कैप है? यहाँ पर एक आई कैप है, यहाँ पर एक आई कैप है कि नहीं? तो अगर आई कैप कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा? P1C2 माइनस C1B2, करेक्ट, इंटू आई कैप, लिख सकता हूँ ना? प्लस अगर जे कैप की बात करूँ, यहाँ पर एक जे कैप है और यहाँ पर एक जे कैप है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? C1A2 माइनस A1C2, करेक्ट ना? इंटू के कैप, सॉरी जे कैप, इंटू जे कैप, इंटू जे कैप, अंडरस्टूड ना? प्लस के कैप ले लेंगे, यहाँ पर A1B2 के कैप है और यहाँ पर B1A2 के कैप है, सो यू कैन राइट A1B2 माइनस B1A2 के कैप। कुछ गलत लिखा क्या मैंने? B1C2 माइनस C1B2 आई No, कैप sir. प्लस C1A2 माइनस A1C2 जे कैप प्लस A1B2 माइनस B1A2 के कैप, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ऑल रोट? Yes, sir. Sir, yes, sir. ये एक्सप्रेशन सब लिख दिए ना आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट, तो हर वक्त हम ऐसा नहीं करेंगे। एक मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और एक डिटरमिनेंट है, वो आप पढ़ोगे, ठीक है। मैं थोड़ा उसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर आई कैप लिख दो, यहाँ पर जे कैप लिख दो, यहाँ पर के कैप लिख दो, यहाँ पर लिख दो A1 B1 C1, यहाँ पर लिख दो A2 B2 C2। Let's see how the matrix multiplication takes place. Students, इसको लेना है प्लस, अल्टरनेटिवली माइनस, फिर से प्लस, ओके, अंडरस्टूड? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड, इस तरह हमेशा करना आप लोग। मैंने लिखा आई कैप, आई रोट आई कैप, ठीक है। फिर जब मैं आई कैप लिखूंगा, सो आई विल लीव दिस रो, सॉरी दिस कॉलम एंड दिस रो, मतलब मैं आई जे के को छोड़ दूंगा और इस कॉलम को छोड़ दूंगा, तो बाकी बचा कितना? ये वाला राउंड रहा ना मेरा, आई विल गेट दिस वन ना, इट्स गेटिंग ना? Yes, sir. Yes, sir. और एक बार बता दें ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसान होगा, जस्ट सी हियर प्रॉपर्ली। फ्रेंड्स ये आई कैप, जे कैप, के कैप, A1 B1 C1 A2 B2 C2, जिन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना था, मैंने उन दोनों की कोएफिशिएंट लिख दिया। ऑल गॉट? Yes, sir. Yes. तो अभी हम सीखेंगे कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो कैसे करना है स्टूडेंट्स? Sir, हाँ, सर नीचे वाले रो में आप C2 नहीं लिखी। अच्छा 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 अच्छा। ये कैसे हो गया हाथ में? फ्रेंड्स हियर, यहाँ पर हमें C2 लिखना है, C2 जस्ट समझाता हूँ, फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट। देखो ये पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो ना, दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फ्रेंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, दिस इज Yes, फर्स्ट sir. कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो मुझे जब मल्टीप्लाई करना है, मैं आई कैप लिया तो मतलब ये कॉलम, ये रो, आई विल लीव दिस रो, आई विल लीव दिस कॉलम, मुझे इसके साथ अभी डील करना है। जब इसके साथ डील करूंगा कैसे लिखूंगा? B1 into C2 माइनस B2 into C1, B1 into C2 माइनस कितना? B2 into C1, मतलब आई कैप जब मैं बनाऊंगा तो आई विल लीव दिस रो कॉलम, आई विल लीव दिस रो, सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की तरह। B1 into C2 माइनस B2 into C1, B2 into C1. नेक्स्ट जब जे कैप लूंगा तो जे कैप को मैंने ऐसे छोड़ दिया, इसको मैंने लीव किया, तो रहेगा अभी ये दोनों और ये दोनों, तो लिखूंगा A1 into C2, A1 into C2 माइनस A2 into C1, माइनस A2 into C1, ओके? हाँ बताओ। Yes, sir. तो फिर जब के कैप ले लेंगे तो के कैप मतलब ये कॉलम को मैंने लीव किया और ये रो को मैंने लीव किया, तो कितना बचा? A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, अंडरस्टूड? या और एक बार बताऊं?
ऑल अंडरस्टूड। जब मैं आई कैप लिख रहा हूँ तो आई विल लीव दिस वन, मुझे सिर्फ इसके साथ डील करना है। B1C2 माइनस सर B2C1। लिखने के टाइम हाँ क्या क्या, ठीक है, ये जे कैप है। जे कैप इज, जब जे कैप लूंगा तो आई विल लीव दिस कलम A1C2 माइनस A2C1, A1C2 माइनस A2C1, ओके। देन के कैप, जब के कैप को मैं लीव करूंगा तो A1B2 माइनस A2B1। चलो मैं उसको लिखता हूँ ताकि आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आ जाए। सो राइट, आई कैप इनटू, मैं लिख सकता हूँ B1C2 माइनस B2C1, माइनस मैंने लिखा जे कैप। जब मैंने माइनस जे कैप लिखा तो आई विल राइट, ये मुझे लीव करना होगा A1C2 माइनस A2C1, करेक्ट। प्लस फिर अल्टरनेट पे लेना है के कैप। जब के कैप ले लूंगा तो A1B2 माइनस A2B1। ऑल अंडरस्टूड। एक लाइन पे हो गया ना देख के, यस और सर कि नहीं, Yes, sir. और कि नहीं। यस सर Yes, sir. ऑल अंडरस्टूड, अंडरस्टूड ना। Yes, sir. Yes, Friends, sir. यस सर I'm giving one example, just do it for me. A cap is equal to D10, A vector is equal to 2 I cap plus 3 J cap plus K cap, and B vector is equal to I cap minus J cap plus K cap. Okay, understood now? Friends, find A cross B. Find A cross B. Just find A cross B. Just find A cross B. कितना होगा? किस फॉर्मेट पे हमें करना है? पहले क्या लिख देना है? I cap, J cap, K cap लिख देना है ना? So to find straight I cap, J cap and K cap. फिर कोएफिशिएंट लिख देंगे, कितना रहेगा? 2 3 1। फिर कोएफिशिएंट लिख देंगे यहाँ पर 1 माइनस 1 1। फिर हम अपने तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू आई कैप होल इनटू, आई हैव टू लीव दिस रो, आई हैव टू लीव दिस कॉलम, सो 3 into 1 माइनस माइनस 1 into 1 माइनस 1 into 1, ठीक है। बाद में हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस जे कैप इनटू, आई विल लीव दिस, आई विल लीव दिस, सो 2 into 1 माइनस 1 into 1 प्लस के कैप होल इनटू 2 into minus 1, 2 into minus 1 minus 3 into 1, करेक्ट। स्टूडेंट अगर सॉल्व कर देंगे तो 3 into 1 कितना है? 3 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 4, 3 प्लस 4 1 कितना हो जाएगा? 4 आई कैप, करेक्ट। यहाँ पर देखो 2 into 1 माइनस 1 माइनस, तो माइनस जे कैप हो जाएगा, दिस माइनस जे कैप, प्लस 2 into माइनस 1 माइनस 2, 2 into माइनस 1 माइनस 2, देन माइनस 3 into 1 कितना हो जाएगा? माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, so that is minus 5 k cap. Just re-verify and write 2 minutes, just write. देखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर Yes, sir. सर हाँ हाँ, सर ये फॉर्मूला रट फार्मूला, लें फार्मूला क्या करना है? सर मैं हम फोन पे बात करेंगे क्लास के बाद है, आप और आपका नेटवर्क, चलो पता नहीं क्या हो रहा है।
He's asking find a unit vector perpendicular to both. A दिया हुआ है, B is given. Find a unit vector perpendicular to both. Friends, simple thing ये है कि A क्रॉस B का जो आउटपुट आएगा that will be perpendicular to both A and B ना, हम डायरेक्शन पे दिख लिए ना. When we are doing A क्रॉस B का जो रिजल्टेंट था यहाँ पर जैसे किए थे, कर ये A वेक्टर सर था. मेमोराइज हाँ, memorize. So A cross B means it is outward, and B cross A means into the plane. If this is B vector, this is A vector, and you are coming B to A, so the resultant vector will be how much? The direction will be into the plane ना. तो इसलिए students, a vector जो दोनों vector को perpendicular होगा, that vector is nothing but the cross product of both the vectors ना. Yes or no? So that vector will be A cross B, and how much we got A cross B? 4 I cap minus J cap minus 5 K cap. Okay, got it or not? और उसने क्या पूछा है? फाइंड ए यूनिट वेक्टर. फाइंड ए यूनिट वेक्टर. फ्रेंड्स, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? द डिजायर्ड वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड ना. फ्रेंड्स, हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? द डिजायर्ड यूनिट वेक्टर इज n cap, that will be equal to how much? A cross B vector जो आया divided by magnitude of A cross B. Magnitude of A cross. Yes or no? So what is the magnitude of A cross B, students? If this is A cross B, then what will be the magnitude of A cross B? मैंने बताया था magnitude of A cross B कैसे निकालते हैं? यस 4 का सर स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. करेक्ट? So that is how much? 16 plus 1 plus 25. कितना हो जाएगा? 42. Root under 42. Yes or no? And the required unit vector is equal to, so if I'll be getting n cap is equal to how much? 1 by root 42 into 4 I cap जो मिला था मुझे minus j cap plus 5 k cap. Right? If A, B, C are coplanar vectors, if A vector comma B vector and C vector are coplanar, then A vector dot A dot B cross C is equal to 0. Why, students? एक ही प्लेन पे है. B cross C जो होगा वो किस तरफ होगा? परपेंडिकुलर होगा ना टू B and C. हाँ, और A dot B is A dot B, मतलब that angle will be how much? 90 degree ना students? मैंने यहाँ पर ये एक प्लेन है ना स्टूडेंट्स. हाँ, यहाँ पर मैंने A वेक्टर लिया, यहाँ पर मैंने B वेक्टर लिया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा ना. यस और नो? और मैं कोई भी वेक्टर जब रख दूं इस प्लेन पे, so that will be perpendicular to both ना. And A dot B, you know, A dot something is AB cos theta, so cos 90 is 0. Yes or no? फ्रेंड्स, समझ पाया ना? Yes, sir. और एक पॉइंट ऐड कर दो. Add another point. Right? Angle between A vector plus B vector and A vector cross B vector is 90 degree.
Angle between A plus B and A cross B is always 90 degrees. Then students. और मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ाया था। फ्रेंड्स, मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ाया था कि नहीं? थोड़ा थोड़ा। क्या मतलब A क्रॉस B, AB sin थीटा, A क्रॉस AB cos थीटा नहीं पढ़ाया था? यस सर। यस सर। एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, बताओ अगर याद है तो बताओ, जस्ट से मी। फ्रेंड, लेट दिस इज a B vector. This is B vector along this line. Let there is a vector along this line. And this angle is 30 degree, students. और इस तरफ एक वेक्टर काम कर रहा है 10, इसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स। क्वेश्चन पे से दिया हुआ है फाइंड A and B if sum of given vector is 0. Find A and B if sum of given vector is 0. If the sum of given vectors is 0. How to do this question? सम ऑफ वेक्टर 0 मींस रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? 0 होगा ना। इस डायग्राम में सम ऑफ वेक्टर 0 मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? सारे को मिला देंगे तो क्या 0 हो जाएगा ना। इस तरफ कितना Yes, sir. वेक्टर एक्ट कर रहा है? इन दिस डायरेक्शन बी वेक्टर इज एक्टिंग। और यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है? फ्रेंड, अगर यहाँ पर ए था, अगर यहाँ पर ए था और ये कितना है? दिस इज 30 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? ए cos 30 ना। और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? ए sin 30 ना स्टूडेंट्स। और नीचे की तरफ क्या वेक्टर है? 10 यूनिट्स है ना। तो नेक्स्ट लेफ्ट साइड will be equal to next right side, next upward will be equal to next down, net downward, because the forces are balanced. The sum is 0. Yes or no? So student, a sin theta is equal to मैं कितना लिख सकता हूँ? 10 लिख सकता हूँ ना। a sin theta is equal to 10 लिख सकता हूँ कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, a sin theta ये है is equal to b. a sin theta is equal to b students. Left side is equal to right side because net force is balanced. समझ पे आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. और a cos theta कितना बन जाएगा? a cos 30 will be how much? Upward is cos 30, downward कितना है? 10. So a cos 30 is equal to 10. Okay. So now you can solve. Sin 30 is how much? A by 2 is equal to b. And a cos 30. Cos 30 is how much? A into root 3 by 2 is equal to 10. So a कितना हो गया? 20 by root 3. A is equal to I got 20 by root 3. So b कितना मिल जाएगा? That is equal to b is equal to how much? 20 by root 3 whole divided by 10. That is equal to 10 root 3. So b कितना आ गया मेरा? 10 root 3. सर Understood? 2√3 by 2. by 2 है ना ये? सॉरी by 2 है। a by 2 है ना? a by 2. यस 220 सर into 10 root 3. So b is equal to 10 root 3. Right? b is equal to 10 root 3. Analysis of a particle in equilibrium. How to analyze a particle in equilibrium? Vector and forces में हम इसको पढ़ते हैं, right? Analysis of a particle in equilibrium, right? Analysis of a particle in equilibrium. Analysis of a particle in
तो बेसिकली हम कुछ फोर्सेस के बारे में बहुत, देयर आर सो मेनी फोर्सेस, बट नाउ विल बी डिस्कसिंग लाइक few forces like weight is a force, tension is a force. वो टेंशन है जो आप पेरेंट्स को देते हो. नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज. वेट के बारे में डिस्कस करेंगे, टेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉर्मल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टू राइट वेट फोर्स. जब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बताऊंगा तो इसको और एक बार बताऊंगा, नो प्रॉब्लम. फ्रेंड्स वेट के बारे में आप लिख सकते हो, इट इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, राइट. इट इज द gravitational attraction, it is the gravitational attraction of earth and is denoted by W and is denoted by W. That is W is equal to, आपको पता है, mg. Yes or no? Weight is equal to mass into acceleration due to gravity. और acceleration due to gravity का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. G is acceleration due to gravity. That G is acceleration due to gravity. G is acceleration due to gravity. Okay, students. Next, सबसे important बात है कि weight always acts vertically downward. Weight always acts. Weight always acts vertically downward. Weight always acts vertically downward. That means students, अगर मैं यहाँ पर एक बॉडी को रख दूं ग्राउंड के ऊपर, और लिसनिंग या सो गए सब? Weight mg. Listening. It is acting vertical. चाहो आपके बात एटलीस्ट सुनाई दिया लिसनिंग, नहीं तो ऐसा सुनाई देता लिसनिंग सा. ऐसे बॉडी प्लेस किया गया है, तो यहाँ पर वेट कैसे काम करेगा स्टूडेंट्स? वर्टिकली डाउनवर्ड. दैट मींस लाइक दिस. ओके, अगर इस तरह एक बॉडी रख दूं तो विल बी कीपिंग ए बॉडी लाइक दिस, तो वेट किस तरह काम करेगा? mg वर्टिकली डाउनवर्ड. करेक्ट. सर थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे क्या नहीं? थर्ड चैप्टर. थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ना, आज वेक्टर खत्म होगा फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट राइट, टेंशन. ये एक्सटेंशन से आया है. आप मान के चलो कोई बॉडी को यहाँ पर पुल करना चाहते हो, तो आप एक रोप लगा देते हो, यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हो. This is applied force. You are giving the force to the body, to the rope. That means you are extending the force through the rope. That is extension से आया है टेंशन. लेकिन आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, whenever a body is connected to a tight string, right? Whenever a body. हेलो सर. हाँ सर ये क्या लिखे? टेंशन. सर ये नहीं, फोर्स ये अप्लाई. फोर्स अप्लाई. फोर्स. Whenever a body is connected, whenever a body is connected to a tight string, whenever a body is connected to a tight string, it is pulled by the string. It is pulled by the string. It is pulled by the string with a force. It is pulled by a string with a force which will be called as
will be called as the tension in the string. It will be called as tension in the string. Tension in the string. सर हम्म, सर हाँ बताओ. सर हाँ, yes. सर Students, यहाँ पर लिख सकते हो. Tension in the string remains same throughout the length, right? Tension in the string remains same. Tension in the string remains same throughout its length. Tension in the string remains same throughout the length. Okay. Next student, tension always acts away from the point of contact. Tension always acts away from the point of contact. Away from the point of contact. That means अगर मैं यहाँ पर एक wall ले from the ceiling, the body is hanging students. इसका मास m है तो ये बॉडी का वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है mg, तो ऊपर की तरफ क्या काम करेगा स्टूडेंट? टेंशन. रूप में जो आता है दैट इज टेंशन. यहाँ पर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एंड टी इज इक्वल टू mg. अलग अलग जगह पे अलग अलग फोर्स फार्मूला. देयर इज नो पर्टिकुलर फार्मूला फॉर टेंशन. और अगर इस पॉइंट से बात करूँ तो टेंशन अपवर्ड की तरफ काम कर रहा है. अगर इस पॉइंट पे बात करूँ तो नीचे की तरफ. थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ this remains same. T remains same. T remains understood. नेक्स्ट कोई पूछ रहा था कि टेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाए. अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूंगा. लेट एक बॉडी यहाँ पर है जो कि 3 kg का है. उसको एक रोप के जरिए मैंने कनेक्ट किया. लेट दैट इज 2 kg and I give a force of here 10 Newton. What is the acceleration of the system? पूरा सिस्टम मतलब जब यहाँ पर फोर्स दोगे तो ये भी पुल होगा और ये भी पुल होगा ना आगे की तरफ. So means total force by total mass, that is 10 by 3 plus 2, correct? 10 by 5 कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना. इसका मतलब ये जो बॉडी है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे की तरफ जाएगा और ये बॉडी वही उसी फोर्स में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे आगे जाएगा उसी एक्सीलरेशन पे. दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन मिल गया. बट मैं जो 10 न्यूटन यहाँ पर दे रहा हूँ पूरा 10 न्यूटन तो इसको लेने पे नहीं लग जाएगा ना. इसको जाने के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितना फोर्स चाहिए? हाउ मच फोर्स इज इट इज रिक्वायर्ड? 2 into 2 4 न्यूटन ना. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ना फ्रेंड्स. 2. Yes. तो मास 2 kg, एक्सीलरेशन 2, कितना हुआ? 4 न्यूटन. बाकी का 6 न्यूटन कहाँ जाएगा इसको पुल करने में? So the rest 10 minus 4 चला गया. Rest 6 न्यूटन is here and this is the tension force in the rope. वही 6 न्यूटन इसको जाके जब पहुंचेगा तो 6/3 कितना हो गया? ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे चलेगा. अंडरस्टूड? So what is the tension in the string here? 6 न्यूटन. Understood or not? Friends, समझ पे आया? Sir, yes, sir. Yes, sir. All got? Next, right, student. Normal reaction between two bodies, right? Normal reaction between two bodies. Normal reaction between two bodies. Just write normal reaction between two bodies. And ये कब आता है? When it comes into play, when two surfaces are in contact, right? When two surfaces are in contact. When two surfaces are in contact. When two surfaces are in contact, they press or push against each other. They press
or push against each other. Press or push against each other with equal and opposite forces. With equal and opposite forces. And student, this is always perpendicular to the surface in contact. This is always, these forces are always perpendicular to the surface in contact. Always perpendicular to the surfaces in contact. Right? Okay. Students, अगर मैं यहाँ पर बता दूं एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में सुने हो? Every action has equal and opposite reaction. Students, mg is weight, that is action that the body is putting on the ground. The weight force acting by the body on the ground, that is action. So ground will put a force on the body, na? That is what? Yes, sir. Reaction. और रिएक्शन जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, इसलिए परपेंडिकुलर का दूसरा नाम है नॉर्मल. सो इसको हम लिख दिए नॉर्मल रिएक्शन, उसको लिखते हैं हम आर. कभी कभी लिखा जाता है एन, नो प्रॉब्लम. आर लिखा जा सकता है, एन भी लिखा जा सकता है. इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट. अंडरस्टूड? अगर मैं इस सरफेस को इंक्लाइन कर दूं, इफ आई विल बी इंक्लाइनिंग दिस सरफेस, so now how the normal force will act, students? Like this. This is the normal force, correct? This is 90 degree. Understood? Friends, अगर मैं यहाँ पर ऐसा एक वॉल है, तो यहाँ पर एक सर्कुलर बॉडी को रख दिया. आई प्लेस्ड ए सर्कुलर बॉडी हियर. यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, सो इट विल फोर्स इन दिस डायरेक्शन. दिस नॉर्मल एंड नॉर्मल फोर्स पेयर्स. यहाँ पर भी नॉर्मल n2, यहाँ पर भी नॉर्मल n2. ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरह और कुछ एग्जांपल्स दे दूं तो आप लोग थोड़ा परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट समझ पे आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स वाले. देन मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा आप लोगों को, दैट विल गेट इट. तो यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है एक सर्कुलर बॉडी. यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कैसे काम करेगा? दिस इज, यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. इफ दिस इज n1, द नॉर्मल फोर्स इज आल्सो n1, करेक्ट? यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. दिस इज n2, दिस इज आल्सो n2, करेक्ट? लेट और एक एग्जांपल दे रहा हूँ. भाई यहाँ पर एक वाल है और मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लेडर को ऐसे रख दिया. kept a ladder like this. So यहाँ पर जो फोर्स लेडर दे रहा है, दैट इज ए नॉर्मल फोर्स आल्सो n1. एक कपल पेयर ऑफ फोर्स होगा n1 n1. और यहाँ पर अगर मान के चलो दिस इज n2 एंड दिस इज n2. Okay, these are about normal forces. Understood, students? Yes, sir. Understood, na? Yes, sir. Yes, sir. एक चीज दिखाता हूँ मैं यहाँ पर एग्जांपल बना के, मतलब एक बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्स कैसे काम करता है. Let you take a surface like this, और यहाँ पर एक ऐसा
ये भी एक surface है. This is also another surface. And I've kept inclination like this. The inclination is like this. और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसे रखा गया है. This angle is theta. और यहाँ से एक स्ट्रिंग से टाई किया गया है. देखे ना सर? Yes, sir. अगर मैं इसको बनाऊं, स्टूडेंट, there is something that we always use to analyze problem solving strategy के लिए हम एक चीज यूज करते हैं. हमेशा हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी पे हम एक चीज यूज करते हैं हमेशा, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम. क्या है? फ्री बॉडी Diagram. नेक्स्ट चलता हूँ. फ्री बॉडी डायग्राम क्या है स्टूडेंट्स? इन फ्री बॉडी डायग्राम the body is treated as a point. Yes or no? FBD, we say it as FBD. FBD, that is free body diagram. हेलो सर. हाँ, और it is known as force diagram. It is known as क्या हुआ आशीष? सर पिछला स्लाइड सर फिर से. ठीक है. हेलो हाँ, नेक्स्ट. सर ये मोशन लिखा है. हाँ, फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम और उसको कहते हैं फोर्स डायग्राम. फोर्स डायग्राम जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं? बॉडी जो है ना, it is treated as a point mass. Treated as point mass. And all other forces, all the forces जो बॉडी के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, all the forces acting on the body, all the forces acting on the body are represented by arrow mark. जो डायरेक्शन पे जो काम कर रहा है उस तरह एरो में उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा. अंडरस्टूड? Sir, point mass. क्या क्या? Sir, point mass मतलब उसको point देके represent करेंगे. हाँ हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. ये एक बॉडी है ना, इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है? ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है. ठीक है, मैंने बताया कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. तो लेट्स यहाँ पर बॉडी ले लिया, नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है? mg, एरो देके लिख दिया. ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है? नॉर्मल फोर्स. करेक्ट. लाइक दैट, मानो कि मैंने और एक फोर्स यहाँ पर दिया. ठीक, इसी तरह एक बॉडी है, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, इस तरफ F अप्लाइड, और लेट पीछे की तरफ क्या काम कर रहा है? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन. मैंने बताया कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. तो इसको पॉइंट मास ले लो. दिस इज mg, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज फोर्स अप्लाइड, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अंडरस्टूड और नॉट? ठीक, उस तरह अभी एक चीज आपको दिखाता हूँ. जस्ट अभी जो इंक्लिनेशन वाला चीज जो हो रहा था, like this, the body is there. Student, weight will be acting in which direction? In this direction, na, mg? Yes or no? Student, if this is theta, this is how much? 90 degree, na? So this small angle Yes, will be how sir. much? 90 minus theta. और यहाँ पर मैंने एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. दिस इज परपेंडिकुलर. सो ये छोटा वाला एंगल कितना हो जाएगा? That's it. See again you see. Friends, again you see. This is mg downward. mg. This is theta. Yes or no? This angle is how much? 90. So this angle will be how much? 90 minus theta. This angle will be how much? 90 minus theta, na? Yes. If this is 90 minus theta, this small angle will be how much? Theta. Because total is 90 degree, na? This is parallel, this is parallel. Got it?
फ्रेंड्स समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. If this is mg and this became theta, this component will be how much? mg cos theta ना, जो थीटा को अटैच होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। करेक्ट? Yes, sir. Yes, और sir. ये वाला फोर्स क्या होगा? नॉर्मल फोर्स। क्या होगा? नॉर्मल फोर्स। तो अगर मैं उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस तरफ क्या एक्ट कर रहा है? mg sin थीटा ना, हाँ? और Yes, ऊपर की तरफ sir. क्या एक्ट कर रहा है? नॉर्मल Normal. फोर्स। और इस तरफ क्या एक्ट कर रहा है? mg cos cos theta. तो मैंने सारे फोर्स दिखा दिया ना। सर नीचे की तरफ। क्या नीचे की तरफ? नहीं, ये इस तरह होगा। नीचे की तरफ तो mg mg. एक्ट करता है, ये mg है। mg को तो मैंने रिजल्व कर दिया, अभी अभी मुझे mg नहीं लेना है। बस मुझे नेक्स्ट इस तरफ की फोर्स, नेट उस तरफ की फोर्स, नेट इस तरफ की फोर्स, सब लेना है, फिर इक्वेट करना है। बिकॉज यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू mg cos थीटा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। अंडरस्टूड? और बॉडी अभी कैसे आएगा? mg cos थीटा जो है ना, वो बॉडी को लेके आएगा। अंडरस्टूड और नॉट? फ्रेंड्स, Yes, sir. आशीष, यस सर। ओके, सर ये एफ लिखा है क्या? क्या क्या क्या? सर ऊपर लाइन में। यहाँ FBD फोर्स फ्री बॉडी नो डायग्राम, सर ये वाला नहीं सर, डायग्राम में सर, लास्ट टर्म ये वाला सर फर्स्ट लाइन का लास्ट टर्म। फोर्स अप्लाइड बेटा, फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा इसका, अगर कहीं पे मैं क्या बोल रहा हूँ उसको और एक बार सुन लेना, ठीक है? यस सर। तो ये हो गया इसका डायग्राम। और मैं जो पिछले वाला डायग्राम सबको दिखाया था, कुछ ऐसा दिखाया था मैंने डायग्राम सबको। जस्ट बॉडी वाज लाइक दिस, ऐसे बॉडी को टाई किया गया था। ऐसा था ना कुछ फोर्स? ये था ना? तो यहाँ पर नीचे की तरफ क्या फोर्स काम करेगा? mg ना। इस तरफ क्या फोर्स काम करेगा? अगर ये थीटा है तो इस तरफ क्या काम करेगा? mg sin थीटा। करेक्ट? ऊपर की तरफ क्या फोर्स आ रहा है? टेंशन T ना। और इस तरफ कौन सा फोर्स काम करेगा? mg cos थीटा। और इस तरफ नॉर्मल फोर्स। सारे फोर्स दिखा दिया मैंने, समझ पे आया? Yes, sir. अंडरस्टूड? सर जो टेंशन फोर्स वो वाला कहाँ से आया? स्ट्रिंग था ना यहाँ पर, मैं पीछे वाला एग्जांपल यहाँ पर देखो, जस्ट सी हियर। यहाँ पर मैंने Yes, sir. दिखाया था Yes, ना sir. मैंने आपको String. स्ट्रिंग, Yes, sir. टेंशन, तो टेंशन आ गया वहां पर। ठीक, अंडरस्टूड? Yes, sir. नेक्स्ट पे जाऊं? Yes, sir. फ्रेंड्स, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, यू हैव टू सॉल्व इट। मैं बस हिंट्स बता दूंगा आप लोगों को। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक एग्जांपल में दे रहा हूं, आप लोग जस्ट ड्रॉ इट। इस तरह कुछ है एक बॉडी, ठीक है? दिस इज द ग्राउंड, मान के चलिए ग्राउंड है। दिस एंगल इज लेट, दिस इज थीटा। थीटा लेट, इट विल बी लेट 30 डिग्री दे दिया उसने क्वेश्चन पे। और एक ब्लॉक ऐसे रखा गया है, ब्लॉक ए, और एक ब्लॉक उसको कनेक्ट हुआ है ब्लॉक बी, और एक ब्लॉक इस तरह कनेक्ट हुआ है, इज देयर, और ये ब्लॉक इस तरह कनेक्ट, एंड दिस इज सी। ठीक है स्टूडेंट्स? वेट ऑफ ए इज गिवन 10 न्यूटन, वेट ऑफ बी ब्लॉक इज गिवन 20 न्यूटन, और ये 30 डिग्री दिया गया है। और उसने दिया हुआ है कि फाइंड डब्ल्यू सी, वेट ऑफ सी, फाइंड वेट ऑफ सी, फाइंड वेट ऑफ सी। ठीक है स्टूडेंट्स? यही पूछा है उसने, हाउ टू सॉल्व दिस वन। फ्रेंड्स, अंडरस्टूड और नॉट क्वेश्चन? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आ गया सबको?
फिर जस्ट मैं यहाँ पर आपको डायग्राम करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे फोर्स क्या रिजल्व करना है, फिर आप उसको बैलेंस करके फ्री बॉडी डायग्राम बना के ही बनाओगे, ठीक है। जस्ट आई एम ट्राइंग टू शो यू ऑल द फोर्सेस एंड देयर कंपोनेंट्स, ऑल द फोर्सेस एंड देयर कंपोनेंट्स, ठीक है। ऐसा है ना मेरा डायग्राम। ये एक ही रोप है स्टूडेंट, दिस इज वन रोप, ओके, दिस इज वन रोप। मान के चलो ये जो रोप है यहाँ पर टेंशन है T1, और ये जो रोप है यहाँ पर टेंशन कितना है T2, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा 2T2 ना, ये सर नो। और WC इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ द सी इज डाउनवर्ड एंड ऊपर की तरफ क्या है T2, करेक्ट। तो अगर मुझे T2 मिल गया तो WC मिल जाएगा ना फ्रेंड्स, यस or सर। not? अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए में अभी बनाता हूं, आई विल बी मेकिंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। लेट्स सी कि ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हो रहा है। दिस इज 30 डिग्री, नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, mg काम कर रहा है ना, इस डायरेक्शन पे क्या काम करेगा, थीटा, दैट इज 30 डिग्री। सो दिस इज mg cos 30 डिग्री will be balanced by normal reaction, so this force is nothing else, we have to do nothing। और इस तरफ कितना फोर्स काम करेगा, mg sin थीटा ना, mg sin थीटा, तो दैट इज mg sin 30। और ऊपर की तरफ इस तरफ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, T1 ना, करेक्ट फ्रेंड्स, करेक्ट। यस सर। एक्चुअली वेट ऑफ WA, दिस इज आल्सो WA। तो फ्री बॉडी डायग्राम मुझे मिल गया किसका, mg sin थीटा का, मतलब ब्लॉक ए का मिल गया, करेक्ट, यस सर नो फ्रेंड्स। ये ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम। And next let's make the free body diagram of block B। ठीक है, उसी तरह ब्लॉक बी का बनाऊंगा स्टूडेंट्स, जस्ट सी हियर, ये वाला ब्लॉक बी है ना, इसकी तरफ क्या काम कर रहा है, WB, ये एंगल कितना होगा, थीटा ना, so that is WB cos थीटा, that is MG cos थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, ये सर नो। और इस तरफ क्या काम कर रहा है Yes, sir. स्टूडेंट्स, इस तरफ क्या काम कर रहा है, WB sin थीटा। sin थीटा, और भी एक रोप इसको लगा हुआ है ना इस तरफ, सो दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है, T1 भी एक्ट कर रहा है ना, करेक्ट। और ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल, पीछे की तरफ क्या काम कर रहा है, टेंशन T2, करेक्ट। समझ पे आ गया। जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस तरफ क्या काम कर रहा है, T2, इस तरफ क्या काम कर रहा है, T1 प्लस WB साइन 30 डिग्री। समझ पे आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, T1 इज इक्वल टू WA साइन 30 ना स्टूडेंट्स, हिंट्स बता दिया मैंने। WA आपको दिया हुआ है 10, साइन 30 का वैल्यू आपको पता है, तो T1 मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि बाकी ये फोर्स बैलेंस हो गया ना, N इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये जो N इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री, दैट इज N इज इक्वल टू WA cos 30 डिग्री, ये बैलेंस हो गया, तो ये कैंसिल, तो ओनली T1 और mg sin थीटा एक्ट कर रहा है। सो इक्विलिब्रियम के लिए T1 इज इक्वल WA sin थीटा, WA 10 sin 30 sin 1/2, तो T1 कितना हो गया, 5 न्यूटन, कट ना, लिख दो 10 into sin 30 is half, that is equal to 5 न्यूटन। T1 कितना हो गया, 5 न्यूटन। अगर मैं T1 को यहाँ पर डाल दूं स्टूडेंट्स, यू नो T1, यहाँ पर मैंने 5 न्यूटन डाल दिया, WB कितना है 20 है ना, फिर sin 30 आया ना 1/2, गेटिंग और नॉट यस सर, सो T2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस WB sin 30, so that is T2 is equal to how much, T1 कितना आया था 5 इंटू आया था 20 इंटू हाफ, 15 न्यूटन हो गया ना, T2 is equal to 15 न्यूटन ना स्टूडेंट्स। यस सर, यस सर, और पहले से मुझे यहाँ पर पता है T2 is equal to WC लिखे है ना, T2 is equal to weight of C, तो weight of C कितना आ गया मेरा क्वेश्चन पे, 15 न्यूटन, 50 न्यूटन। क्वेश्चन समझ पे आया, सिंपल वेक्टर रिजोल्यूशन यूज करके हम निकालें, अंडरस्टूड और नॉट। Yes, sir. सर 15 में 50 हो, 15 बेटा, 15 1 5 सर ये 10 तो
2 10 50 20 sin 30 5 plus 2 into अच्छा 1 ये 5 प्लस है अच्छा ये सर वो प्लस मल्टीप्लाइड हो गया। हाँ प्लस 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 दैट इज 15 न्यूटन ओके अंडरस्टूड yes sir.